আমার আজকে আপনার থেকে বেশি তাড়া আছে বিকজ আই হ্যাভ টু ক্যাচ আ ফ্লাইট টু মিট সিএম তুলে দিন যে তুলে দিন লোকের নিচে নামিয়ে দিন। আরে আমি বলছি তো তুলে দিন না, কোনো কে কিছু বলে আমি বলছি আপনাকে। ফ্ল্যাগটা নামিয়ে দিন না, ফ্ল্যাগটা নামিয়ে দাও। নামটা বলি তো आपकी लाइट बंद करिए आपकी लाइट बंद करिए सर्विस स्टार्ट पीछे एसो सामने जाओ, पीछे एसो। नमस्कार I request all the girls who have come to represent the women's tournament tomorrow, please come in the front. I want you to be here before me so that we can talk about it. I request all the representatives of all the 8 clubs, please come forward and introduce yourself at this stage. Ladies and gentlemen, my name is Pawan Kumar Patodia and I am the honor. Please come forward. আপনারা এখানে চেয়ার নিয়ে নিন বাবু, চলে আসুন। শুনো, একটা চেয়ার এদিকে কিছু চলে এসো, এদিকে কিছু চলে আসো, বসো আরে ওই চেয়ারটা টেনে নাও বাবু। এখানে দুজন বসে যাও, ওদিকে দুজন বসে যাও, ওদিকে দুজন বসে যাও। চেয়ারটা টেনে নাও বাবু, ওদের দিকে দিতে হবে। This arrangement should have been made. They are the one. Clear, sir? So I start the conference. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. I start the conference officially. My name is Pawan Kumar Patodia. I welcome all the delegates from and all the reporters, narrators from all the prominent press. I can see a good gathering here on a Wednesday afternoon. I welcome you all. On my left is my team director, Sumit Kumar Patodia. Next to him is Mr. Govinda Bhattacharya. He is our technical team. On my right is Prasanjit sir. He is a technical team. On my right is Basanti ma'am. She is another international referee, woman volleyball, and she is the only international women referee in Calcutta so far as my knowledge goes. These are the representatives from various teams which are going to take participation in this match. I'll give them mic in some time to introduce them because I also don't know personally. But looking at these girls, I feel so honored and so proud that they are here. Now, before I throw the session open for the media to ask me questions, let me tell you what is the purpose of this meeting today and why we all are here. Sir, Indian volleyball needs no introductions. Indian volleyball is famous all over the world. But the only problem was, somehow or other, India became polarized in the matter of sports and everybody started loving cricket and football. I also like Virat Kohli. I also like Raju Gudia. But then, everybody in India is not as fortunate. इतना मैं हिंदी बोलूँ, इंग्लिश बोलूँ, मैं बांग्ला बोलूँ, कौन सा लैंग्वेज बोलूँ? तो बांग्ला एक तो मिस्टेक হবে কিন্তু আপনার সামনে ঠিক আছে। আমাদের দেশে ক্রিকেট আর ফুটবল খুবই ফেমাস। আমিও ফুটবল আর ক্রিকেটকে পার্সোনাল তौर पे খুবই পছন্দ করি, কিন্তু প্রবলেমটা হচ্ছে সবাই অত ভাগ্যবান নেই কেউ ক্রিকেট খেলতে পারে, ইন্ডিয়াকে রিপ্রেজেন্ট করতে পারে, আইপিএল এ খেলতে পারে, ফুটবল খেলে, লিগে খেলতে পারে। There are many games, there are প্রচুর গেম আছে। আমার মাথাতে আছে the fittest player who have to struggle the most in the central court, ওটা হচ্ছে वॉलीबॉल। मैं अक्सर एक जोक बनाता हूँ, एक वॉलीबॉल का प्लेयर एक मैच में 300 बार कूदता है, जंप मारता है, 5 मैच होते हैं। अगर उसे जिंदगी में जितने मैच में दौड़ा है, जंप मारा है, उसको अगर आप उस ऊंचाई को अगर आप जोड़ लो तो शायद वो चांद पर पहुंच जाएगा। On a humble background, what I say is, इन प्लेयर्स में जितनी स्ट्रेंथ होती है, मैंने अपनी बच्चियों को ईस्टर्न रेलवे का मैच में बुलाया था, मैं खेलने देखने गया था। और जो स्पीड है, अगर हम कॉर्पोरेट वर्ल्ड ने स्पोर्ट्स को सपोर्ट कर दिया तो फिर आने वाले सालों में
प्रधानमंत्री का जो मिशन है खेलो इंडिया, और 2036 में जो अपने यहाँ ओलंपिक हो रहा है उसमें इंडिया की परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया है। मेरा आपसे वादा है 14 साल के वनवास को काटने के बाद, यानी कि 2022 से 2036 तक का वनवास काटने के बाद वॉलीबॉल में मैं वादा करता हूँ 2 मेडल मैं वॉलीबॉल में इंडिया के लेके आऊँगा। मैं नहीं बोलता गोल्ड लेके आऊँगा, हो सकता है ब्रॉन्ज ही लेके आऊँ, लेकिन लेके आऊँगा। अब सवाल ये होता है कि मैं मारवाड़ी, मैं वॉलीबॉल क्यों, इसलिए चार्टर्ड अकाउंटेंट क्यों, ये सवाल मैंने बहुत मंच पर दिया है। लेट अस गो फर्दर फ्रॉम दैट। हमने 23 से 27 तारीख तक जेंट्स का टूर्नामेंट कराया था और हम 23 डिस्ट्रिक्ट से बच्चे आए थे, 22.5 लाख लोगों से हम जुड़ गए। 48 टीम ने मैच खेला था। हमने अपनी लाइफ में नहीं देखा कि 48 टीम पूजा कमेटी से आए, झगड़ा नहीं हो, गालागाली नहीं हो। बहुत टेंशन था, बहुत ज्यादा नर्वस थे हम, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, कैसे हुआ। हर टीम ने जाके उसको इतनी तारीफ की कि इन बच्चों के फोन आने लग गए कि सर आप सिर्फ लड़कों को खिलाएंगे, हमको नहीं खिलाएंगे। मुझे लड़कियों का टूर्नामेंट करने में बहुत डर लगता था, फ्रैंकली, बिकॉज जेंट्स का टूर्नामेंट कराना बहुत आसान होता है, लेडीज के टूर्नामेंट में सेफ्टी एंड अदर थिंग्स आती है। और सबसे बड़ी बात ये थी, शायद आपको मालूम नहीं है, 24 तारीख यानी कि कल, आगामी कल, ये बच्चियां, जिनमें से बहुत से प्लेयर्स नेशनल खेलने जा रहे हैं, कलकत्ता को रिप्रेजेंट। पहली बात तो ये है कि इनके टीम की तरफ से, इनके कोच की तरफ से इनको परमिशन मिलना भी बहुत मुश्किल होता है, लेकिन मैं वेस्ट बंगाल वॉलीबॉल एसोसिएशन का दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि मेरे कॉज, मेरे मकसद को उन्होंने मद्देनजर रखते हुए इन बच्चियों को खोलने का परमिशन दिया। यूनेस्को ने 2022-23 में दुर्गा पूजा को हेरिटेज डिक्लेयर किया है। 1 तारीख से हम पूजा मना रहे हैं। इसीलिए हमने, जब दुनिया स्टार्ट करेगी उसके 7 दिन पहले हमने जेंट्स टूर्नामेंट रखा, ताकि हमारा सेलिब्रेशन 7 दिन पहले होगा, और वही 7 दिन पहले हमने लेडीज टूर्नामेंट रखा है। आज 23 तारीख को टूर्नामेंट रखने का एकमात्र लक्ष्य था, इस बार ये लड़कियां आप सबका आशीर्वाद लेके जाएगी नेशनल खेल में, और इस बार मेरा दावा है ये कम करके आए। क्यों? अकेला जब बच्चा निकलता है वो घबराता भी है, डरता भी है। आज आप लोगों के सहयोग से, इस टेक्निकल टीम के सहयोग से इन बच्चियों को मालूम है कि पूरा कलकत्ता इनके पीछे खड़ा है, वरना ये कब गए, कब आए और कब गुमनाम हो गए किसी को पता नहीं चला। लेकिन आज के बाद ऐसा नहीं होगा। आपको सुन के बहुत आश्चर्य होगा, 75 साल आज़ादी के बाद भी आप यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं, 80 किलोमीटर दूर भी जाएंगे, आपको ऐसे ऐसे गांव मिलेंगे जहाँ पर एजुकेशन की कमी है, जहाँ लोग पे जूता नहीं है, जहाँ लोग एक रस्सी को बांध के वॉलीबॉल खेलते हैं। और कौन सी वॉलीबॉल? कपड़े की वॉलीबॉल, कपड़े की वॉलीबॉल, सब कपड़े की वॉलीबॉल। इनफ। Let us not wait for the government to do everything. As a good citizen of this country, it is our equal responsibility to contribute as much as possible. I request the new members to please come and sit down and players to come on front. मेरा ये मानना है एक पर्सनल तौर पे कि एक चिकन की स्टोरी ना करके हम ये देखें कि हम क्या कर पाते हैं। मैं अभी से आधे घंटे बाद आसाम जा रहा हूँ, वहाँ मेरी आज आसाम के सीएम से मीटिंग है, स्पोर्ट मिनिस्टर मीटिंग है। कल वहाँ मेरी एक बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस, और मैं आप भाइयों के सामने ऑन रिकॉर्ड, ऑन टीवी, ऑन मोबाइल फोन, ऑन एप्लीकेशन डिक्लेयर करता हूँ, आने वाले 7 महीनों में मैं 10,000 गांव में वॉलीबॉल, नेट और 12-12 जर्सी डिस्ट्रीब्यूट करूंगा। एक ताली बच सकती है, एक ताली के लिए तो कंजूसी मत करिए। कीप अप्रिशिएटिंग। यार, एक आदमी पैसा खर्चा कर रहा है, कोई दीवाना कहता है, कोई पागल कहता है, ताली तो बजा दो यार। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए and some respect for the man who was at the age of 60 is doing so much for these girls and for these boys. मैंने अपना मैन टूर्नामेंट करवाया था, इसका नाम क्या था? ऑर्किड एरिना में। आपको मालूम है 23 तारीख को बारिश की संभावना है। मैंने ऑर्किड एरिना को किया था। मेरे ये बच्चे मट्टी के बने हुए नहीं हैं और ना मोम के हैं, ये फौलाद है, ये बारिश में भी फंसते हैं। लेकिन जब बारिश इनके शरीर पे जब पड़ती, इनकी ड्रेस छिप जाती,
तो इनको शरीर को देख के कई लोग फोटो खींचते हैं और मैं अपनी बेटियों को वो फोटो खिंचवाने के लिए कहता हूं। इसलिए मैं रेलवे के पास गया और मैं शुक्रगुजार हूं, इस प्लेटफॉर्म पे बोलता हूं। इंडियन रेलवे ने पहली बार अपना स्टेडियम हमें दिया है इन लड़कियों का मैच खेलने के लिए। व्हाट अ वर्ल्ड क्लास स्टेडियम दे हैव मेड। अभी तक ऑफिशियल हैंडओवर नहीं हुआ है। मैं 15 सेकंड का एक वीडियो इस हाउस को देना चाहूंगा, दिखाना चाहूंगा, और मैं चाहता हूं वो वीडियो ये हाउस मेरे बेटे से लेके हर जगह दिखाए। आप देखिए मेरी बच्चियां जहां ये मैच खेलेगी वो जगह कोई मामूली जगह नहीं है। उस जगह घर के रखिए सर, इस बच्ची को एक बार खड़ा करिए। बेटा खड़ा हो बेटा। आप देखिए इंटरनेशनल प्लेयर है। आप एक बात बच्चियों को देखिए, आप कितनी खूबसूरत है और कितनी नाजुक है, लेकिन पंगा मत ले लेना यार। इनके एक शॉट अगर पड़ गए 12 हड्डी टूटेगी, इसके तो 14 टूट सकती है। आज के बाद ये बच्चियां आज के बाद ये बच्चियां ऑर्डिनरी बच्ची नहीं है, बिकॉज इनको आपका आशीर्वाद है, इनको सरस्वती का आशीर्वाद है। और आज अगर आपने आशीर्वाद दे दिया, इन बच्चियों को जीतने से कोई नहीं बचा सकता। आई फाइट फॉर देम, डू यू फाइट फॉर देम? यस और नो? यस। सो आज ये लड़कियां कल जा रही है, इनमें से अधिकतर प्लीज सिट डाउन, इनमें से अधिकतर लड़कियां कल जा रही है। इनमें से कुछ बच्चियां मेरी बेटियां की उम्र की है, कुछ बच्चियां मेरी बहन की उम्र की है। मैं अपने फीमेल एथलीट से, मैंने नियम कर रखा है, मैं अपने फीमेल एथलीट से, भाई साहब जरा सुनेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा प्लीज। इफ यू कैन सिट डाउन फाइन, अदरवाइज यू कैन लीव द रूम प्लीज। मैं अपने फीमेल एथलीट से अकेले नहीं मिलता हूँ। मेरी फीमेल एथलीट को मुझे मिलना होगा तो अपने पापा को या अपने भैया को लिखाना पड़ेगा। जो नाम उनके पापा का कार्ड में लिखा हुआ आधार में, उस आदमी का आधार कार्ड वो होना चाहिए। द सिंपल रीजन इज आई वांट जीरो कंट्रोवर्सी इन माय लाइफ। मैं इन बच्चों के लिए वो हवा हूं जो दिखती नहीं है, लेकिन वो ऑक्सीजन हो जिसके बिना ये जिंदा नहीं रह सके। विद दीज वर्ड्स आई हैंड ओवर द माइक। I have to leave for a flight, so I will ask these girls. They will speak 1 minute each, and thereafter I will throw the house open for questions to me, and the meeting will be continued by my son, Sumit Patodia. Now let me introduce Sumit Patodia. He is a young boy who has started his career from St. Xavier's College. He went to US. He was in Ivy League college for 4 years. जो दुनिया के बच्चों के लिए सपना है, He was in America for 4 years. लोग वहां से फिर इंडिया नहीं आते हैं, ये बच्चा इंडिया आया, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स किया है। उसके बाद 2 साल IIM अहमदाबाद पढ़ा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको इकोनॉमिक एडवाइजर कमेटी में रखने के लिए प्रपोज किया। 90 लाख रुपया बेन एंड कंपनी ने इसको जॉब दिया। बच्चे ने जॉब एक्सेप्ट भी किया। मेरा बच्चा इंडस्ट्रीज का बच्चा, लेकिन इसको अपने पाँव पे खड़ा होना था, अपनी पहचान बनाने के लिए। लेकिन क्या है ना, डीएनए डिफेक्ट था। डीएनए डिफेक्ट था, वॉलीबॉल पकड़ लिया। लेकिन मैं आज आपको बता रहा हूँ, आज पवन पाटोदिया जो कुछ भी कर रहा है वो सिर्फ इस बच्चे की वजह से कर रहा है। जब 7.5 लाख रुपए महीने की उसकी सैलरी का मैं सेक्रीफाइस कर रहा हूँ, तो अगर मैं 20 लाख रुपए महीना प्रमोशन पे नहीं करता हूँ, इस बच्चे का मेरे साथ रहना का कोई मकसद नहीं। आप उसे मेरी मजबूरी समझिए या इसे कुछ भी पकड़ लीजिए। लेकिन आज ये वॉलीबॉल जो ग्रो कर रहा है वो मेरे पागलपन से शायद इतना स्पीड से नहीं करता, लेकिन इस बच्चे के पागलपन की वजह से मैं मजबूर हूँ कि यार कुछ भी नहीं किया तो 1 महीने का सैलरी का जो पैसा मिलता है वो लॉस हो गया, तो कुछ खर्चे कर लो। अब मैं चाहूँगा बिफोर आई थ्रो द हाउस ओपन फॉर क्वेश्चन, और थोड़ा हल्के हल्के क्वेश्चन पूछना है और थोड़ा सिंपल बंगाली में पूछना ताकि मैं जवाब दे पाऊँ। क्योंकि क्या है, मैं बहुत मुफ्त आदमी हूँ और दिल से बोलता हूँ सर, और कंट्रोवर्शियल क्वेश्चंस का जवाब मैं दूंगा नहीं। आई मेक यू वेरी क्लियर। मैं एक बात इस प्रेस के माध्यम से पूरी दुनिया को बोलना चाहता हूँ, मैं कोई पॉलिटिक्स करने नहीं आया हूँ। मैं या मेरा फैमिली BFI की कोई भी पोस्ट पे
अगले 25 साल में नहीं आएंगे। बनेंगे तो मिनिस्टर बनेंगे सर, क्या बीएफआई मिनिस्टर बनेंगे सर। वेरी गुड, वेरी गुड। तो मैं इस मकसद में मैं किसी भी एसोसिएशन के अगेंस्ट में नहीं हूँ। मेरा पूरा सहयोग है कि मैं इन प्लेयर्स को चैंपियन बना के भेजूंगा, और अगर उनको नेशनल खेलना है, ओलंपिक खेलना है, तो उन्हें उसी प्लेटफॉर्म पे बीएफआई पे खेलना पड़ेगा। मैं अपने बच्चों से कभी नहीं कहता हूँ कि तुम बीएफआई के अगेंस्ट जाओ, क्योंकि पेरेंट कंपनी वो है। आज 3 साल से वॉलीबॉल में जॉब मिलना शुरू हो गया, बहुत दूर नहीं है, साल 6 महीने में जॉब मिलने लगेगा। ये जो 3-4 आदमी मेरे टेक्निकल स्टाफ है ना, ये तो अच्छा खासा नौकरी कमा रहे हैं बॉलीवुड से, इनकी भी अच्छी नौकरी है, इनकी भी अच्छी नौकरी है। ये इनकम टैक्स में धमकाते रहते हैं, बोले दो तो एक्टर रेट बोल दो, वो रेट बोल दो, वो रेट बोल दो। लेकिन क्या है, इनमें से बहुत सी बच्चियां ऐसी है जो खेल रही है, एंड दे कम फ्रॉम वेरी हम्बल फैमिली, दे कम फ्रॉम रियल हम्बल फैमिली सर। 4 दिन पहले रात को 1 बजे बच्ची की माँ ने मुझे फोन किया सर, मोगरा से, रात को 1 बजे। बोला मेरी बच्ची लिब्रो खेलती है सर, 13 साल की है, ये लड़कियां सीनियर जो मैच खेलने आ रही है, इनमें तो वो खेल नहीं सकती, लेकिन इनको लेके भी नहीं जाएंगे लोग। वो जाके बोलो पवन सर ने बोला सर माठ में नहीं खेलेंगे। मैंने सर रात को 1:30 बजे एक नया नियम पास किया, नॉट एडवाइजरी, इट इज कंपल्सरी, इट्स इंस्ट्रक्शन फ्रॉम कैलकाटा थंडरबोल्ट चेयरमैन। ऑल टीम पार्टिसिपेटिंग इन द टूर्नामेंट ওনাকে 10 থেকে 12 বাচ্চা, 13 থেকে 15 কে নিয়ে আসতে হবে স্যার। আরেকটা কথা আমি আপনাকে বলে দিই, কালকে টুর্নামেন্টে ম্যাক্সিমাম যা চিফ গেস্ট আছে, উনি আছে মিসেস রুচিরা গুপ্তা, বিবেক গুপ্তা হচ্ছে গেস্ট অফ অনার, and there are hundreds of galaxy of people. On my right side will be all Arjun awardees from taekwondo, cricket, football, table tennis, shooting. On my left hand side will be all marketing heads of Tata Steel, Century Plywood and all. And my message to the young kids will be, এই হলে তুমি একটা অর্ডিনারি সিটিজেন, একটা অর্ডিনারি বাচ্চা করে ঢুকেছো, কিন্তু আজকে এই হল ছাড়া আগে তুমি নিজেকে প্রতিজ্ঞা করবে 7 বছর পরে আমি এই স্টেজে আবার ঢুকবো একটা অর্জুন অ্যাওয়ার্ড নিয়ে, কিংবা চিফ অফ মার্কেটিং হয়ে কোনো একটা বনে আসবো। The only difference between kids sitting left and right and me is আমি ওকে দেখাতে চাই, এ দেখো অর্জুন অ্যাওয়ার্ড আছে, তোমার মতনই আছে, দেখো দুটো হাত আছে, দুটো আঁখ আছে, নাক আছে, তোমার মতনই আছে, এই যে পবন পাট্টে আছে তোমার মতনই আছে। If I can do, why can't you? ওনার আর আমার মধ্যে একটাই ডিফারেন্স আছে, আমার ম্যানিফেস্টো ম্যাচিওর হয়ে গেছে, their manifesto is yet to mature. Let us all bless them by clapping here and say to this house that we stand for them. আমি একটা স্লোগান বলবো, সে সবাই আপনারা বলবেন, সেটা আমার আদর হবে। আবার স্লোগানটা খুবই সুন্দর, আপনি যদি বাঙালি পয়দা হয়েছে, বাঙালি মানে ভট্টাচার্য আচার্য ওটা না, বাঙালি মানে পবন পাট্টাও বাঙালি, এখানে পয়দা হয়েছে, এখানে ছেলে, তুমি ডিফারেন্সিয়েট করতে পারবে না বাবু। আমার স্লোগান আছে, খেলবে বাংলা, জিতবে বাংলা। তো একবার আমরা প্র্যাকটিস করি, একবার আমি বলি, খেলবে বাংলা, জিতবে বাংলা। কি মশাই, ও তো সস্তা বাংলা দিতে যাবে, একবার জোর করে বলুন। প্রেস আছো তোমরা, সরস্বতী নিয়ে বলছো, আমিও চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট, সরস্বতী ভাষা। এখন আমি মাইক দিচ্ছি ভলিবল প্লেয়ারকে, হাউ ডু দে ফিল, অ্যান্ড তারপরে আমি হাউসকে ওপেন করবো কোশ্চেন জন্য, তারপরে মিটিংটা আবার ছিল। আমি বেটা তোমার একটা ব্লাউজ পিস, এটা না, এটা তো রেকর্ডিং হচ্ছে। তুমি এখানে চলে আসো বাবু, তোমার নামটা কি আছে, এখানে চলে আসো বাবু। তো আপনি উঠে যাবো, তুমি এটাই বলো, তুমি এটাই বলো। তুমি তোমাকে ইন্ট্রোডিউস করো কি আছে আর তোমার কি আছে, হোয়াট ইজ ইওর ফিলিং অ্যাবাউট দিস বলিউড। তুমি বাংলা, হিন্দি, ইংলিশ জানো? ওকে, আমার নাম অনুশ্রী ঘোষ, আমি ইন্টারন্যাশনাল ভলিবল প্লেয়ার। লাস্ট 2012 থেকে আমি ইন্ডিয়া টিমে পার্টিসিপেশন করছি। কার মোবাইল পাচ্ছে বা বান্ড করুন। হ্যাঁ, বলো। তো বলুন, প্রথম থেকে একদম বলুন দিদি। ওকে, অনুশ্রী ঘোষ, আমার নাম অনুশ্রী ঘোষ, অ্যান্ড আমি ইন্টারন্যাশনাল ভলিবল প্লেয়ার। আমি লাস্ট 10 ইয়ার্স মানে 2012 থেকে আমি আপ টু 2022 ইন্ডিয়া টিমকে রিপ্রেজেন্ট করছি। অ্যান্ড আমি দুটো এশিয়ান গেমস প্লে করেছি, অ্যান্ড স্যাফ গেমস গোল্ড মেডেল লাইক দ্যাট। তো
আমাদের এটা যে টুর্নামেন্টটা হচ্ছে খুবই ভালো হচ্ছে। আপকামিং যারা প্লেয়াররা উঠে আসবে তাদের জন্য খুবই ভালো, খুবই একটা ভালো অপরচুনিটি যে আমাদের নিজের গেমটা শো করার জন্য। অ্যাকচুয়ালি আমাদের ভলিবলটা এতটাই হাইলাইট হয় না, তো তার জন্য ইভেন আমি অলসো ইন্ডিয়ান প্লেয়ার, তো আমরাও সেই হিসাবে কেউ চেনেও না, অলরেডি কেউ চেনে যে আমি ইন্ডিয়ান প্লেয়ার, বাট ভলিবলটাকে যেভাবে প্রমোট করা হচ্ছে, থ্যাংক ইউ। আমি স্যারকে বলবো যে এইভাবে প্রমোট করা হচ্ছে ভলিবলকে, আপকামিং প্লেয়াররা খুব ভালোভাবে উঠে আসবে এবং তাদের এনকারেজ হবে যে খেলার জন্য, যে আমরাও খেলতে পারি, এগোতে পারি। আমি দিদি আপনাকে একটা কোয়েশ্চেন জিজ্ঞেস করতে চাই এই প্ল্যাটফর্মে। আপনি খেলার আগে যখন ফর্মটা ভরেছেন কোনোদিন কলকাতা থান্ডারবার্ড আপনাকে বলেছে যে আপনি লিগ খেলবে, বাইরে খেলতে পারবেন না, অ্যাসোসিয়েশন খেলতে পারবেন না, ইন্ডিয়া খেলতে পারবেন, এখন কোন কন্ডিশন বলেছি? না না, এরকম কোনো ব্যাপার নেই। ধন্যবাদ। আই গিভ দ্য মাইক টু তোমার বেটা ইন্ট্রোডাকশনটা বলবে। Thank you. Myself, Anjali Chaurasia. I am from Team Salkia Club. I'm really glad to Patodia sir and their technical team to as a हम लोगों Players तो को बेटा? चांस देने के लिए and I'm very Players सामने चले आइए। very glad to be a part of this tournament and thank you. তোমাকে কি বোঝা যাচ্ছে এই যেভাবে প্রমোশন হচ্ছে, যেখানে নিয়ে পাবলিকরা বলছে এটা করলে কি ভলিবল আগে যাবে, তোমার মনে হচ্ছে এরকমটা হতে যাবে? Of course. আমি একটা কোশ্চেন জিজ্ঞেস করি, আমি যদি কোনো মাঠে উঠে যাই, পাবলিক আমাকে চিনতে না, লোক জানতে हैं? हाँ जरूर जानते हैं। আপনাকে বলতে আপনি বলতে চলে আসুন, आदत कर लीजिए, अब रोज प्लेटफॉर्म पे बोलना है। क्यों बेटा, आपने तो बहुत बार बोला है, इन बच्चों को कहाँ चांस मिलता है? घबरो ना बेटा, हमें ऐसे बात बांग्ला, हिंदी, उर्दू যা ভাষা বলতে পারো বলো, চিন্তা করিস না, কেউ কোশ্চেন জিজ্ঞেস করবে না, চিন্তা করিস, সবাই তো আশীর্বাদ দিয়ে পাঠাবে। আমি জয়ন্তী ঘোষ, আমি এমনি ন্যাশনাল প্লেয়ার। আর মানে এই থান্ডারবোল্টসে খেলাটা হচ্ছে, এটার জন্য খুবই খুশি যে আপনি এটা করেছেন। তো চাই সেরকমভাবে মানে মজা করেও খেলতে আর খেলাটা ভালোভাবে হোক। তুমি কি জানো থান্ডারবার্ড কাপকে আমি নাম দিয়ে থান্ডারবার্ড কার্নিভাল, এই যে কনসেপ্ট যে কার্নিভালে আছে তোমাকে কি পছন্দ হয়েছে? কার্নিভাল হচ্ছে যেখানে খেলা বাজে, যখন প্লেয়াররা থেকে যায় আমরা ডান্স পাস করি, সেলিব্রেট করি, পূজা আসছে, ওই কনসেপ্টটা তোমাকে কি পছন্দ হয়েছে? তুমি বলবে এসো। জোরে তুমি অত বড় প্লেয়ার, তুমি খারাপ কেন? থ্যাংক ইউ। আমি স্মিতা সিংহ রায়, আমি পার্টিসিপেট করছি টুর্নামেন্টে। তুমি কোন টুর্নামেন্ট বড় খেলেছো? তাহলে আগে ওটা বলো, কোনটা টুর্নামেন্ট? খেলো ইন্ডিয়া খেলো ইন্ডিয়া যে কলকাতায় হয়েছিল, হারিয়ানা। হরিয়ানা যেতে হয়েছিল। এরা যখন বাইরে যখন ঘুরে, আমি সত্যি একটা কথা জিজ্ঞেস করি, আপনার সবাইকে আজকেও জিজ্ঞেস করি, একই জিজ্ঞেস করছি, আমরা যদি এই মধ্যে এক মহিলাকে আমরা যদি নাম যেটা বলে দিয়েছে, আমি সব মেনে নেব, বলবো সিন্ধু স্যার এই পরীক্ষামে আমি বলে যাচ্ছি, 6 মাসে পরে এরা যখন থেকে বেরোবে না, ও বলবে এই দেখো ও যাচ্ছে, এই দেখো ও যাচ্ছে, সেই দিনটা আসবে। থান্ডারবোল্ট হচ্ছে, এটা দাদাদের খেলা দেখেছি আমরা, দাদারা খেলছে অনেক উঁচু লেভেলে গেছে দাদারা, এটা মানে আমরাও যে খেলবো আশা করেছিলাম, তা হচ্ছে মেয়েদের। আমরা সত্যি খুব খুব ভালো লাগছে, আমাদের সবারই ভালো লাগছে। এরকমভাবে আরও টুর্নামেন্ট হোক ভলিবল মেয়েদের জন্য, যাতে মেয়েরা উঠে আসতে পারে, অনেক উঁচু জায়গায় যেতে পারে, কারণ অনেক মানে আমরা মেয়েরা বিশেষ করে উঁচু জায়গায় যাওয়ার স্বপ্ন দেখি। থ্যাংক ইউ সবাইকে। এখান থেকে ফার্স্ট অফ অল থ্যাংক ইউ স্যার, আমাদেরকে এত সুন্দর একটা সুযোগ দেওয়ার জন্য। আমার লাইফে প্রথমবার শুনছি থান্ডারবোল্টস কার্নিভাল এটা হচ্ছে, এটা যেন এটা লাস্ট না হয়ে যায়, এটা যেন আমরা আগামী বছর তারপরে বছর সবসময় খেলতে যাবো, প্রতি বছর যেন এটা নক আউট একটা এটা লাস্ট দু কন্ডিশনই হবে, যদি তোমরা ভালো না খেলো, হ্যাঁ আমরা ভালো
তো আমরা ব্যাস। ভালো খেলবো, ভালো খেলা দেখাবো এবং আমরা এই চাইবো ম্যাচটা হচ্ছে ওখানে 4খানা এলইডি আছে 100 ফুট বাই এলইডি। এই ম্যাচ পুরো ইন্ডিয়াতে, এই ম্যাচ অর্ডিনারি ম্যাচ হচ্ছে ফুললি এয়ার কন্ডিশন হচ্ছে 1400 ক্রাউড আছে 3 থেকে 4 স্কুল থেকে বাচ্চারা পুরো বাস ভরে আছে। থ্যাংক ইউ স্যার আমাদেরকে এতটা ওয়াইল্ড রোডে রিপ্রেজেন্ট করার জন্য। আমি আতাবাগান থেকে রিপ্রেজেন্ট করছি আর নাম হেনা বর। থ্যাংক ইউ স্যার, আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। আপনি কি বলে বলতো আমি মোহবানী নাইক, টিম বার্সেল পশ্চিমবঙ্গ থেকে। ঠিক আছে। অ্যান্ড বলেছেন দিদি থ্যাংক ইউ এত সুন্দর একটা টুর্নামেন্ট করার জন্য। ইভেন আমরা এটা দেখেছি যে ছেলেদের এরকম হচ্ছিল, তাদের বড় বড়, তো আমরাও চেয়েছিলাম যে একটা ওমেন্সদের এরকম একটা টুর্নামেন্ট হোক, সবাই চেয়েছিল আমরা এরকম। তো সত্যি খুব ভালো লাগছে এরকম একটা টুর্নামেন্টে পার্টিসিপেট করে। থ্যাংক ইউ। So, I have just 5 minutes. From thereafter, my son will take over. It doesn't mean you should go. I have to take a flight because I have to meet the Chief Minister of Assam. This is also in connection with sir. Sir, एक बात बोलता हूँ सर। 6 महीने पहले मेरे 2 पन्ने खुलते थे। मैं कौन कौन सी कंपनी में डायरेक्टर हूँ और मेरा कौन सा लिंक्डइन अकाउंट है। आज मेरे 60,000 पन्ने खुलते हैं और लोग ये गूगल करते हैं कि पवन पटोडिया का नेटवर्क कितना है, पवन पटोडिया का बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड कौन है, पवन पटोडिया की फैमिली क्या है। पूरा इंडिया को अब ये पता करना है कि पवन पटोडिया क्या करता है। कमाल है यार, पवन पटोडिया को मत देखो, इन बच्चियों को आशीर्वाद दो, इन बच्चों को आशीर्वाद दो। खेलेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। इंडिया की जीडीपी इतनी अच्छी है। मोदी जी ने इंटरनेशनल बड़े बड़े जो टॉप हुआ करते थे, यूके यूएसए के प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर, अब मोदी जी बीच में खड़े होते हैं। हम देखते तो फोटो वैसा ही है, पता नहीं एक्चुअल है कि पूरा गलत है, मालूम नहीं मुझे। और रिस्पेक्ट टू हिम, बट आई सी मनमोहन सिंह को देखते थे, जब हम देखते थे तो मनमोहन सिंह 300 मीटर दूर होते थे। जब हमने अभी इनको देखा तो देखा थे 56 इंच सीधा लेके खड़े होते हैं। कल्चर में इंडिया को, खासकर वेस्ट बंगाल को, पूरी दुनिया बीट नहीं कर सकती। आर्ट्स में कोई, ओलंपिक में हम पीछे हैं, ओलंपिक में हम पीछे हैं। सफल देश की पहली भाषा है ओलंपिक। 2036 के ओलंपिक, 14 साल पूरा एक वनवास काट लिया अगर हमने, तो अब हम पीछे ले रहे हैं। जाओ जाके बोल दो इंडिया से, नया इंडिया आ रहा है, गरजते परस्ते आ रहा है। एंड दिस इज जूइस पटोडिया। You know, Juyis Patodia means the father of thunder and storms. So this is Juyis Pawan Patodia coming. So I throw the house for questions now. वो दादा আপনি বলেন, আমার অতটা বলা সম্ভব নেই। উনি বলছে ওনার একটা বাংলা আমাদের প্যারালিম্পিক হচ্ছে, স্পেশাল অলিম্পিকে হচ্ছে, আর আমি ওখানে চিফ গেস্টও আছি স্যার, আমি যাচ্ছি ওসব প্রোগ্রামে। আমি জানি আমাদের এই 8 টিম মধ্যেই একটা জিসি চৌধুরী বলে ভদ্রলোক আছে, উনি আহমেদাবাদ টিম নিয়েছে, আর প্যারা অলিম্পিকের সেক্রেটারি অল ইন্ডিয়া উনি আছে। তো প্যারা অলিম্পিকে এমন কোনো নিউজ আপনি আমাকে দিতে পারবেন না, আমি আপনাকে অনেকটা নিউজ দিয়ে দিচ্ছি। ন্যাশনাল যা মেয়েরা জেন্টসরা খেলতে যাচ্ছে, এই ন্যাশনালটা ভাবনগরে হচ্ছে বলে ওরা জানেন না, কিন্তু আমি জানি। যখন ঢুকেছি কিছু জানতাম না স্যার, আস্তে আস্তে পলিটিক্স শিখেও দিচ্ছি আমি। I open the house for questions for 3 minutes or 5 minutes, then I have to leave, and the rest of the questions, difficult question may be asked, and I will prefer if Mr. Ambar Bhattacharya, who is standing right here in a blue t-shirt, he does not ask me questions. Rest of the house will ask me questions. सर कितने टीम्स है और कहाँ से रिप्रेजेंट? सर 8 टीम्स है, और कहाँ से है उसका जवाब हमारे टेक्निकल स्टाफ देंगे। सर कहाँ से team है? ईस्टर्न रेल, তারপরে মালকিয়াম हो गया, আতাবাগান, তারপরে আমাদের DJ Spiker Club। सर एक बात मैं बोलना भूल गया, यस, वो डीजे स्पाइकर क्लब के मालिक यहाँ अगर है तो सामने आइए जरा, आइए फ्रैंकी सर। मैं आपको एक मुझसे भी बड़े पागल से बनाना चाहता हूँ। ये बंदा अपनी कमाई जो डीजे से कमाता है, डीजे है ये, फैमिली बिजनेस भी है। ये बंदा अपनी वॉलीबॉल की टीम बनाता है, लाखों रुपया खर्चा करता है, पता नहीं इसको क्या मिलता है। इसने भी एक टीम बनाई है अपनी प्रोफेशनल प्लेयर लेके। लेट अस ऑल गिव हिम अ राउंड ऑफ अप्लॉज। एक टीम इसकी भी है सर। So this
this is open for all sectors. Even a corporate can send a team. नहीं सर, as of now, corporate or politics or BJP, we are only taking 8 of the best teams, and then we have made 2 teams in Calcutta Thunderbolt for male, 2 for female. One is called Thunderbolt Army, where players of 12 to 16 years will be taken. They will be trained by us. और अपना के हाउस के हमें बोलते चाहिए. They will be playing round the year tournaments. Whatever match fees they get because of our platform, they will not be said 1,000 because last week I sent my team to Sikkim. I charge 25,000 per player per day. वो जो पैसा होगा वो सारा प्लेयर को मिलेगा, हमें एक पैसा भी नहीं चाहिए. कई टूर्नामेंट जो सिक्किम वगैरह होते हैं 10 लाख भी प्राइस मनी होता है, वो पैसा भी उनको मिलेगा. मेरा टीम होने के बहुत खुशी. और जिस जगह प्राइस मनी 50,000 से कम भी होगा, हमारी टीम जीत के आएगी. सपोज 20,000 है तो 30,000 मैं दूंगा, वो प्राइस मनी दूंगा. तुम सिर्फ जीतो, बाकी मैं Sir, my rural India planning is right now I am leaving for Assam, and tomorrow I am declaring there that from 1st of October I am visiting 10,000 villages in a phase of 4 parts and distribute volleyballs to all these villages where either they have no volleyball or whether they are playing with the kapda volleyball or whether they are playing with a string of rope tied over 2 6 and I have tied up with many coaches in all states, and the person who draws volleyball court, एक volleyball court ही जो होने किसी जगह चाहिए सर. 26.5 by 53 फुट जगह चाहिए, जेटा प्रत्येक जगह दिए जाएगा. These people will go to these places and दरकार पड़ली इधर भी बांधे पाठी देवो अपन 5 दिन 4 दिन सीखिए आज पे मैडम के. और ये जो सीनियर प्लेयर है ना, उनको खड़ा कर दूंगा. Look, she has come to and the बच्चा रखी बात वो बड़ो प्लेयर के देखिए इंस्पायर है एंड दे प्ले. व्हाट इज द रीजन व्हेन वी सी लाइक यू एंड आई सी व्हेन वी सी विराट कोहली, वी आर रेडी टू लीव ऑफिस. माय विराट कोहली आर दिस प्लेयर्स हु आर they are unsung heroes and heroines today, but sir, give me 2.5 years, they will be known faces. তখন আমাকে ওনার কাছে অপরচুনিটি দিতে হবে, দিদিমণি আজকে একটা মিটিং করতে পারবে না? না দাদা 3 দিন আমার তো শুটিং আছে, আমি যেতে পারছি না. आप विराट कोहली का नाम ले रहे हैं, एक कपिल देव भी है. कपिल देव तो सर इसी 1983 का इतिहास रचने वाले. कपिल देव एक वॉलीबॉल की भी कपिल देव है, अनुश्री को मालूम. जी मालूम हो जानता हूँ मैं. एक कपिल रेलवे के कोच है सर. मैंने उनकी कमेंट्री भी की है यहाँ पे नेताजी. सर ऐसा है सीजन 2 में वो सब आइकॉन है सर. ऐसा है सर सीजन 2 में कपिल देव साहब जो रेलवे की कोचिंग करते हैं आज के दिन, आपको शायद मालूम होगा. आप कपिल देव को जानते हो, उनसे पूछिएगा कि पवन पटोडिया से उनसे बात होती है क्या, एंड व्हाट आर हिज ओपिनियंस अबाउट कपिल पटोडिया. सर ऐसा है ना, इस देश में ऐसा हुआ नहीं कि बिना मकसद की कोई कुछ करता. 40 साल से बहुत पैसे कमाए, लेकिन कुछ चीज़ें आदमी को हर्ट कर जाती है. जब मैं आसाम बुलाया गया था, इंडियन ऑयल ने मुझे बुलाया था सर, वहाँ पर प्रशांत बरकौपति जो रेजिडेंट ऑफिसर्स हैं, जिनका पावर एक चीफ सेक्रेटरी जितना होता है, हॉटलाइन पे बात करते हैं प्राइम सीएम से. उन्होंने जब मुझे बताया कि सर हम एक गांव में गए थे, वहाँ लोग एक स्ट्रिंग मार के वॉलीबॉल खेल रहे थे, हमने उन्हें स्ट्रिंग देने की कोशिश की. आपको मालूम हो उस गाँव के बच्चों ने क्या कहा? सर हमें वॉलीबॉल या स्ट्रिंग नहीं चाहिए, आपको देना है तो 4 किलोमीटर आगे एक गाँव है, वहाँ कपड़े की वॉलीबॉल से खेलते हैं. उस बच्चों का जज्बा को सलाम है सर, और ये मेरे पास रिकॉर्डेड है सर. आई कैन शो इट टू यू. 1700 आदमी के स्टैंड पे मैं खड़ा होकर बोल रहा हूँ. आज इस देश में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है सर? हमने वॉलीबॉल टीम बनाई, हमने वॉलीबॉल प्लेयर्स बनाए, हमने उनको ट्रेनिंग दी, अच्छे प्लेयर बनाए. उसके बाद क्या? हर आदमी तो नेशनल नहीं खेलेगा, हर आदमी तो इंटरनेशनल नहीं खेलेगा, हर आदमी. लेकिन हमने अगर लीग चालू कर दी, स्टेट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, इंटर स्टेट लीग चालू कर दी, और उसके बाद दुनिया बुलाएगी. कभी दुबई से बुलावा आएगा सर. आज मेरी टीम हर चौथे दिन एक मैच खेलती है, कभी दुबई खेलती है, कभी गोवा खेलती है. इसीलिए नशा हो गया सर. नशा इसलिए हुआ कि यार नाम में दाम है, नाम में काम है. अगर मेरे नाम के बीच इन बच्चों को रजिस्टर कर दिया मैंने और पूरा फीस इनको दिया, इनको बोलूंगा निगोशिएशन मैं करूंगा, तुम करोगे तुमको दबा दूंगा.
तुम बोलोगे ठीक है अच्छा 5,000 में दे देंगे, बोला, नहीं नहीं नहीं, हमारे बच्चों को 3 स्टार में रखना पड़ेगा, हमारे बच्चों को एरेसर करना पड़ेगा, हमारे बच्चे तभी खेलेंगे जब तुमको इतना पैसा एडवांस हर आदमी के अकाउंट में देगा। सर कुछ चीजें बिजनेस से ऊपर होती है। Any other questions to the house, please? I have to rush. স্যার একটা গ্রুপ পিকচার নিয়ে যাও আপনি গ্রুপ পিকচার सर आवाज की बुढ़ो के नहीं क्यों बच्चे की फोटो खड़ी हो जाए any other questions? बॉल